English Class 3 Semester 1 Chapter 1. The very big parcel. First, we will see the animation. Once there lived a man and his wife. They were not rich but lived happily with their friends and neighbors. One day, the couple received a big parcel. They were very happy. But when they opened the big parcel, they found only a tiny apple seed in it. They got very disappointed. Instead of simply throwing away, the man sowed the apple seed in their little garden, watering it every day. In no time, the seed grew into a plant, and the plant became a big apple tree. It produced plenty of apples. The man picked one of the apples and cut it open to see how good it was. Lo and behold, the man and his wife found something amazing inside it. Gold coins! The more apples they cut, the more gold coins they had. They were very happy. They went to the market and bought many nice things. In the meantime, the apple tree had died because no one took care of it anymore. Inside the apples were only dust. And though the man poured buckets after buckets of water on it, the tree had died. The couple didn't have any more money. They started selling off all they had and were now left with almost nothing. Their neighbors saw all this. They came and helped them. Then the couple realized that friendship is more valuable than money. The very big parcel. सबसे पहले आप लोग पूरा चैप्टर ध्यान से रीड करोगे और फिर इस वीडियो को देखोगे ताकि ठीक से समझ में आ जाए. Now I am going to start explanation. Here is a story of how a small seed gave a large amount of money to a couple. यहाँ पे एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक छोटा सा सीड एक कपल को, यानी वी कैन से हियर कपल का मतलब होता है दो लोग जो साथ में रहते हैं, टू पीपल हु लिव टुगेदर. तो एक कपल को छोटा सा सीड कैसे लार्ज अमाउंट ऑफ मनी देता है, ये हमारी स्टोरी में बताया गया है. Once upon a time, there lived a man and his wife. एक बार एक मैन अपनी वाइफ के साथ रहता था. They lived in a small house with a small neat garden. वो एक छोटे से घर में, छोटे गार्डन वाले घर में रहते थे. They were very happy. वो बहुत ही खुश थे. They had good friends and neighbors with whom they shared everything. उनके पास अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे नेबर्स थे जिसके साथ वो अपनी हर एक चीज़ शेयर करते थे. एवरीथिंग शेयर्ड. One day they received a big parcel. एक दिन उनके पास एक बड़ा पार्सल आया.
दे वर वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ही एक्साइटेड थे. बोथ ऑफ देम वॉन्टेड टू नो इफ इट वॉज अ ह्यूज टेलीविजन और सम ब्यूटिफुल क्लोथ्स. दोनों ही जानना चाहते थे कि इतने बड़े पार्सल में क्या बड़ा सा टीवी है या फिर ब्यूटीफुल क्लोथ्स हैं. दे ओपन द पार्सल एंड फाउंड अ स्मॉल सीड. उन्होंने पार्सल खोला और उनको मिला एक छोटा सा सीड, बीज. द कपल वॉज डिसअपॉइंटेड. अब कपल जो था वो नाखुश हो गया, अपसेट हो गया. However, the man sowed the seed and watered it. फिर भी मैन ने उस सीड को सो किया, अपने गार्डन में बोया और उसको watered it, पानी दिया. Soon a shoot appeared. बहुत ही जल्द उसका जो शूट होता है यानी प्लांट का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो दिखाई दिया. शूट appeared. The shoot grew into a young plant and then it grew taller and taller. तो शूट जो था वो थोड़ा बड़ा हुआ, एक छोटा सा यंग प्लांट बना, उसके बाद वो बढ़ता ही गया, टॉलर और टॉलर बनता गया. हायर एंड हायर इट ग्रू until it was a big tree. और इतना ऊंचा हायर एंड हायर ग्रो हुआ कि वो एक बिग ट्री बन गया. The man and his wife were excited. अब मैन और उसकी वाइफ दोनों ही एक्साइटेड थे टू सी फ्रूट्स ग्रोइंग ऑन द ट्री. ट्री पे फ्रूट्स लगने की राह देख रहे थे. द मैन picked the first apple and put it on the table of his kitchen. अब पहला फ्रूट ग्रो हुआ तो मैन उसको पिक करके लाया और अपने किचन के टेबल पे रखा. Then he took a knife. And cut the fruit in half. दो हाफ में उसको कट किया नाइफ लेके. He was shocked. वो बहुत ही सरप्राइज हुआ टू फाइंड गोल्ड कॉइन्स इनसाइड. उसके अंदर उसको क्या मिले? गोल्ड कॉइन्स मिले. बोथ ऑफ देम वेर ओवरजॉयड. बहुत ही खुश. एंड दे डांस्ड मेरीली, हैप्पीली. दोनों ही बहुत खुश हुए और हैप्पी डांस करने लगे. द कपल डिसाइडेड टू स्पेंड जस्ट 1 coin एंड कीप द रेस्ट इन द सेफ. कपल ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ 1 कॉइन स्पेंड करेंगे और बाकी के कॉइन्स को सेफ में रख देंगे. दे थॉट दैट ऑल द एप्पल्स मे नॉट हैव गोल्ड कॉइन्स. उनको एक थॉट आया, सोचा उन्होंने कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि सारे ही एप्पल्स में गोल्ड कॉइन ना निकले और इसीलिए एक ही स्पेंड करते हैं और बाकी के सेफ में रख देते हैं. वी डू नॉट नो वॉट इज़ इन द अदर फ्रूट्स. हमको नहीं पता है कि बाकी के फ्रूट्स में क्या है, क्या निकलेगा. दे मे बी फुल ऑफ वर्म्स. उसके अंदर वर्म्स भी निकल सकते हैं, कीड़े भी हो सकते हैं. सेड द वाइफ ने कहा उसके अंदर कीड़े भी निकल सकते हैं. नेक्स्ट डे द मैन पिक्ड अनदर बिग रेड फ्रूट एंड दिस टू वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स. दूसरे दिन मैन ने दूसरा एप्पल पिक किया और उसमें भी इट वॉज ऑल्सो फुल ऑफ गोल्ड कॉइन. उसमें भी गोल्ड कॉइन्स थे. आफ्टर दैट द कपल वॉज लेस केयरफुल. उसके बाद कपल थोड़ा केयरलेस होता गया. लेस केयरफुल मतलब केयरलेस बनने लगा विद देयर मनी. अपने पैसों के बारे में जितना उन्होंने पहले ध्यान रखा था कि चलो 1 गोल्ड कॉइन स्पेंड करते हैं और बाकी के सेव रखते हैं,
पर जब उनको पता चला कि बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स निकल रहे हैं तो वो केयरलेस बनने लगे और अपने मनी को जैसे चाहे वैसे स्पेंड करने लगे. दे हैड अ वंडरफुल टाइम बाइंग फाइन क्लोथ्स एंड थिंग्स फॉर द हाउस एंड गार्डन. उनका बहुत ही वंडरफुल बढ़िया टाइम चल रहा था. अच्छे अच्छे फाइन क्लोथ्स बाई कर रहे थे घर के लिए और गार्डन के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बाई कर रहे थे. एवरी डे द मैन पिक्ड अनदर फ्रूट एंड इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन. हर रोज़ मैन एक फ्रूट लेके पिक करके आता था और वो फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स रहता था. Every day they went to town and had a grand time spending the money. हर रोज़ वो टाउन जाते थे और उनके लिए बहुत ही ग्रैंड टाइम था, बहुत ही बढ़िया टाइम था. स्पेंडिंग द मनी, पैसे खर्च करने के लिए उनके पास बहुत ही अच्छा समय चल रहा था, ये कह सकते हैं. अब ये 2 पेजेस जो हमने अभी डिस्कस किए हैं उसमें मैंने कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं that you will write in your notebook as hard words, and if you find more hard words then also you can add. तो जो भी मैंने अंडरलाइन वर्ड्स किए हैं वो सारे ही आपको नोटबुक में लिखने हैं और बाकी का पेज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे.